Welcome to the channel again. The channel is MK Classes, and in this video series of PYQ of the UGC NET, I am discussing the previous year questions. If you are new to this channel, then I've already discussed the PYQ from 2018, 19, 20, 21, 22, and 23 also. The two parts has been released, and this is the third part and the final part from 2023 PYQs. In this video series, I am discussing all the pattern which is there. I am giving advice. I am attempting each and every questions. So we have already gone through more than 500 questions and more than 500 concepts which are there. And I have also provided the tips and tricks to crack the UGC NET exam. Hopefully, you are getting benefits from all these questions and answers and discussions and concepts which are whatever is going on. So with this, I will be starting the video and taking the first question. Okay, so this is the first question of the part third of the PYQs of 2022. The question is very simple, very easy. Fundamental duties in the Constitution of India under Article 51A. A can be enforced by the Supreme Court? No. Uh, can be used by the Supreme Court in interpretation? Obviously, yes, they can be used. So A is not there, तो दो ऑप्शन कैंसिल आउट पहले ही हो चुके हैं. P is there, तो वन और थर्ड ही इसका आंसर होगा. थर्ड is can be amended by the states? No. They cannot be amended by the states. Has been amended by the parliament only once? Yes. Till now, they are only once has been amended by the parliament. So D is also correct. So the correct option is B and D. I hope nothing more is there to explain. So I will be taking the next question. Okay, so another long question, very easy question. I will read the question. Article 163 of the Constitution of India states that there shall be a council of minister along with chief minister to aid and advise the governor in the exercise of his functions, except where he is required by the constitution to exercise his functions in his discretion. ठीक है, under what circumstances can the governor be called to exercise his discretion? So the important terms are is that under what circumstances the governor can be called to exercise his discretion. Discretion क्या होता है? जहां उसको he will use his own brain and come to some conclusion. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिशन. जहां पर आपके पास डिस्क्रिटनी पावर होती है कि आप यस या नो या कोई भी डिसीजन खुद से ले सकते हैं. ठीक है, तो ए अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑब्वियसली इट इज देयर. Dismissal of ministry or dissolution of assembly, yes, at the time of that the governor has discretionary power. Submitting report to president for proclamation under article 356, yes. In the case of national emergency, there is also discretionary power on in the governor, rest in the governor. Appointment of high court judges, no, absolutely not. As we all know, the judiciary is independent, so governor has nothing to do with the appointment of high court of judges. So D option is not good, and only option which is not having D is one, ABC. So I hope I have made the points very clear. And I hope you are taking the notes of each and every article which is there and each and every option which is there, because for you, for the purpose of exam, every option of the question is important. So with this, I will be taking the next question. Okay, so another question from the fundamental rights, which is there in the Constitution. Article 28 is related to the religious rights which are there. 25 to 28 deals with that. So the Article 28 of the Constitution of India mentions four types of educational institutions. In which of the following institution can religious instructions be imparted with the consent of the individual or otherwise? Institution wholly maintained by the state? No. तो अगर ए ही नो है, ये तो बहुत इजी है, तो ऑप्शन ही बी सी और डी है. सो बट वी शुड रीड द अदर ऑप्शंस आल्सो. इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यस. Institution that receives aid out of state funds, yes. Institution that is administered by the state but established under any trust or endowment, yes. So in this institution, with the consent of the individual, the religious instructions can be imparted, and all detail I mentioned in the explanation part. You can go through it, note down, because these are the fundamental rights. So you have to dig it down, है ना? Deeper जाना पड़ेगा when it comes to fundamental rights. And the advice which I want to give is that read all the points and see all the explanation, because each and every option is important for the exam. So with this, I will be taking the next question.
ओके, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ लॉन्ग क्वेश्चन, एंड आपको मैंने पहले ही बताया जितना क्वेश्चन लंबा होगा उतना इजी उसको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Section 7 of the Hindu Marriage Act 1955 provides that a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party. So the thing which you have to note down in this question is either party is mentioned in the Section 7. Now we'll continue. Consider the following situation and decide in which case the marriage is validly solemnized. ठीक है, तो हमें एक एक केस को रीड करते हैं। At the time of marriage, all essential Shastric ceremonies are performed. This is very important and expressly mentioned under section 7. That it is important, essential that all the Shastric ceremonies are to be performed, which includes Saptapadi and other which are there. So it is an essential, तो A is the correct option। तो 3 और 4 में दे ही नहीं रखा, तो इसका आंसर या तो ए बी होगा या ए बी सी होगा। तो अब हमें सी पढ़ लेनी है, so as to solve this question very easily. At the time of marriage, half of the ceremonies of brides and half of the ceremonies of bridegroom's family are performed. No, बिकॉज इट इज आइदर साइड, किसी एक साइड की कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी उसकी, तो मिक्स नहीं करना है, विच इज नॉट देयर। So it should be, it is expressly mentioned that either side of the parties ceremonies should be performed, not a mixed match. So the answer is A and B. I hope with the method of elimination it can be done, it can solve very easily. But for the from the exam point of view, you have to read each and every point which is there, and I have also mentioned in the explanation part that why these points are not eligible, but still they also have some value. Some cases are I have mentioned, to just go through it, note it down, because for you every option is important. Another very simple question from the Hindu law, बहुत ही easy question है। Under the Hindu Marriage Act 1955, Sapinda relationships and degree of prohibited relationship includes relationship by full half and uterine blood, कंफर्म है, ये तो है ही है। ठीक है, तो ए थर्ड में नहीं है, थर्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। बी अडॉप्शन, अडॉप्शन तो इज लाइक नेचुरल ओनली, तो ये भी है। तो बी किसी में नहीं है क्या? नहीं, बी तीनों में है, तो यानी कि नहीं, फोर्थ में नहीं है, तो यानी कि वन और टू में से देखना है हमें, तो यानी कि सी भी तीनों में होगा। लेजिटिमेट ब्लड किया तो जाहिर सी बात ही है। अब बचा डी और ई में से एक नहीं है, तो illegitimate blood relations are considered, but fosterage is not considered because fosterage relations are not mentioned under Hindu law. फोस्टेज क्या होती है? फोस्टेज शायद आपने सुना होगा कि फोस्टेज होम्स होते हैं, ठीक है। फोस्टेज होम किसको कहते हैं? कि जैसे कि ये कॉन्सेप्ट शायद इंडिया में तो इतना फॉलो नहीं होता, लेकिन यूएस वगैरह में क्या होता है कि कुछ बच्चों को किसी और फैमिली के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है, कुछ टाइम के लिए, जब तक उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर ना जाए या माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन सुधर ना जाए। तो उनका उनसे कोई लेना देना किसी प्रकार का होता नहीं है, तो वो रिलेशनशिप है। तो इसका कोई लेना देना हिंदू लॉ से तो बिल्कुल भी नहीं है। सो द आंसर इज डी, इलिजिटिमेट ब्लड रिलेशंस। फिर भी क्योंकि द चिल्ड्रन ऑफ द इलिजिटिमेट ब्लड रिलेशंस आर ऑल्सो लेजिटिमेट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। सो इस प्रकार से illegitimate blood relationship under comes also under the Sapinda relationships, है ना, and under the prohibited degree. So I hope that I have made all the points very clear, all the concept very clear. So still you can make the notes from the this explanation section. So I will be taking the next question. Okay, so this is the question from Match the Following. So इसमें I don't think I need to explain anything. Explanation is there. Only task and advice which you should do is to mark all these in your notebook in the minor act section, और इनको लिख लो। ये तुम्हारे लिए बहुत इजी होंगे, ताकि आगे इनसे क्वेश्चन शायद आई थिंक लास्ट पीवाई क्यूज में भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो दैट्स वाई ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट जैसे कि मॉरल ट्रैफिक एक्ट इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इंपॉर्टेंट है, सिविल राइट्स एक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पता होने चाहिए, है ना, एटलीस्ट इनकी इनेक्टमेंट के ईयर तो आपको पता होने चाहिए। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो सेम इज द अदर द क्वेश्चन व्हिच वी हैव जस्ट डन। ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। दिस इज मैच द फॉलोइंग, गो थ्रू इट, मैच इट, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये एमएच हॉस्पिटल वाला केस शायद पिछले 2000 या तो इसी में पिछली 2-3 वीडियोस में है।
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है इससे। हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, so just know the year of these judgment, and so I will be taking the next question. ओके, सो ये तो बिट अटपटा क्वेश्चन है, जिस डाला इसीलिए गया है कि इसका आंसर किसी को नहीं पता होगा, बट फॉर यू द एडवाइस इज द सेम, जस्ट नोट इट डाउन। और इस बार ही चारों पूछे, हो सकता है किसी आपको एक या दो भी याद रह जाए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाए, है ना। सो जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक इन दी आईपीआर section. So with this I will be taking the next question. So okay, this is also like the above question. इसमें sections पूछे हैं provisions के. This is also tough question. So the answer is before you. Just note it down in the IT Act, I guess. So we will be taking the next question. Okay, okay. So this is an important question from the schedules. एंड मैंने कितनी बार पहले ही बता दिया है कि शेड्यूल्स हो, अमेंडमेंट्स हो, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, दिस शुड बी ऑन योर फिंगरटिप्स। केस लॉज फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल 368, तो एट द डिफरेंट कमीशन विच आर देयर, लाइक फाइनेंस कमीशन, इंटरस्टेट कमीशन, तो ये तो आपकी फिंगरटिप्स पे होने ही चाहिए। वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको एक भी दो तीन भी पता है तो आप कर लेंगे। हालांकि ये एवरी शेड्यूल, ठीक है, सारे के सारा 12 के 12 शेड्यूल्स यू शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, है ना। तो लैंग्वेज इज इन एट्थ शेड्यूल, ये बहुत इजी है। ठीक है, तो बी का वन किसमें, एक ही ऑप्शन है, तो इसको तो वैसे ही बहुत ही इजीली आप दूसरा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। हालांकि टेंथ शेड्यूल इज फेमस फॉर एंटी डिफेक्शन लॉज, है ना। तो क्या हो गया, सी का 2 हो गया। तो ये आपको सारे नोट डाउन करने हैं, है ना। सॉल्विंग इज डिफरेंट थिंग, बट फॉर यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नोट डाउन। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मेरे को हिसाब से तो आपके पास पहले ही सारे के सारे शेड्यूल विद लिस्ट मेंशन होने चाहिए, और आपको रोज रिवाइज करने हैं, बिकॉज रिवीजन इज द की टू रिमेम्बरेंस। ये मैं 50वीं बार बोल चुका हूँ। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so this is a very interesting question from constitutional law. All the landmark judgment has been mentioned. ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना संभाल के, वरना गलती कर बैठोगे। बिकॉज प्रोस्पेक्ट, जैसे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हम जैसे ही पढ़ते हैं, ये आर्टिकल 368 का एक इम्पोर्टेंट केस है। इट इज फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड केसेस की जो श्रृंखला है, उसमें ये तीसरे नंबर का केस आता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें समझाने वाली एक चीज है जो मैं समझाऊंगा आपको, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अब पहले ऑप्शन देख लो, गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नो इट इज इन द लिंक लेटर वर्सेस वॉकर वाले में। लेकिन प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैज बीन देयर इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। ठीक है, अब ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की डॉक्ट्राइन क्या होती है। हो क्या रहा था कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इज रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, उससे पहले भी दो तीन केसेस हो चुके थे, लेकिन उसमें जो विजय प्राप्त हुई थी, दैट इज टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, कि द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। ठीक है, तो उसको अमेंड करा जा रहा था, लैंड लोगों से लिए जा रहे थे, लैंड रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, जिन्होंने भूमि को एकत्रित कर रखा था। मान लो जिसके बाद 500-500 एकड़, 1,000 एकड़ जमीन थी, तो लैंड रिफॉर्म्स ला के एक सीलिंग लगा दी गई कि इससे ज्यादा जमीन एक बंदे के पास नहीं हो सकती। तो बाकी जो बुआई या उस पर काम कर रहा होता था, उसी को उसका मालिक घोषित कर दिया गया थ्रू लैंड रिफॉर्म। अब भाई, कहीं ना कहीं जो एलिट क्लास था उस पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा था, तो उन्होंने केसेस करने शुरू करे। अब सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हुआ, शंकरी प्रसाद वर्सेस शंकरी प्रसाद वाला केस हुआ, लेकिन दोनों में ही उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया कि नो, द अमेंडमेंट्स कैन बी मेड इन द फंडामेंटल राइट्स बाय द लेजिस्लेचर। बट टिल द टाइम गोलकनाथ केम, तो गोलकनाथ में इस रूलिंग को ओवर रूल कर दिया गया, और ये कह दिया गया नो, द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। तो यानी कि पूरे की पूरे लैंड रिफॉर्म पे एक तरीके से रोक लगा दी गई। अब सवाल ये था कि जो पहले लैंड रिफॉर्म हो चुके हैं, लोगों को प्रॉपर्टी बढ़ चुकी, अब भाई ये तो बहुत कठिन चीज हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुई, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक है, यानी कि ये जो प्रेसिडेंट है, ये जो जजमेंट है, ये रेट्रोस्पेक्टिव काम नहीं करेगा। जो लैंड रिफॉर्म्स हो गए वो हो गए, बट फ्रॉम द डेट ऑफ गोलकनाथ और उसके आगे अब लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल। बाकी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, which is related to right to register a nota. Nota is none of the above vote.
ठीक है, इसमें ये एस्टेब्लिश की गई आपकी जॉर्ज वर्गीस वर्सेस बैंक ऑफ कोचिन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ICCPR इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डाला है इसने। ठीक है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट्स is incorporated, some of the exponent is incorporated in the article 21 of the Indian Constitution। तो ये सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट से नोट डाउन कर लो, खुद से भी जाके पढ़ो। और अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आई होप ये पहले से ही आपके पास नोट डाउन होंगे। विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is an important and interesting question which is full of concepts. So I have not seen this question in the last PYQ like 2018, 19, 20, 21, 22. So I will be explaining all the concept and very easy concept। ठीक है, तो सबसे पहले मैलिस इन लॉ क्या होता है? मलाइस इन लॉ का मतलब होता है कि अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल के पास कोई पावर है और वो अपनी पावर का मिसयूज करे। फॉर एग्जाम्पल, टेंडर भरा 5 लोगों ने किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अब सबसे कम बिड लगाई ए ने, लेकिन सी जो है वो उस ऑफिशियल का रिश्तेदार है, उसने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए सी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। दिस इज मैलिस इन लॉ। सेकंड इज मेल्फियंस, मेल्फिसेंस बेसिकली। तो मेल्फिसेंस में क्या होता है कि मेल्फिसेंस में कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, विदाउट एनी प्रूफ किसी को डैमेज कर देता है। इसका एग्जाम्पल कैसे है कि जैसे कि कोई पुलिस ऑफिशियल या फिर कोई भी बंदा गवर्नमेंट ऑफिशियल ब्राइब ले ले, तो इसमें क्या हुआ कि किसी का कोई डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी पावर को फिर भी गलत प्रकार से यूज करा। ठीक है, अनलॉफुल एक्ट करा। ठीक है, विच इज एक्शनेबल पर से, उसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। वो ये नहीं कह सकता है कि मेरे को पता ही नहीं था कि ये गलत है। ठीक है, तो मेल्फिसेंस उसको कहते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल टेकिंग ब्राइब। थर्ड इज मिसफीसेंस। मिसफीसेंस कब होता है? मिसफीसेंस कब जब होता है जब आपको पता है आपका कोई इंटेंशन भी गलत नहीं है, आप अपनी जो एक्ट है उसको करते हुए थोड़े से नेग्लिजेंट हो जाए, मतलब नेग्लिजेंट हो जाए। ठीक है, जो एक्शन है वो तो लीगल है, एक्शन इलीगल नहीं है, लेकिन जो करने का तरीका था ना, उसकी वजह से, उसके एग्जीक्यूशन से किसी को डैमेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो कि सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसने सर्जरी परफॉर्म करते करते कोई जैसे कि पेट में छुरी कैंची छोड़ दिया, किसी प्रकार की चीज नेग्लिजेंटली एक्ट करा। तो मिसफिसेंस में क्या होता है? मिसफिसेंस का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि जो एक्ट है वो पर से लीगल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैलिस इन लॉ और मेल्फिसेंस में, मेल्फिसेंस में जो एक्ट था वही इलीगल था, और मैलिस इन लॉ में जो पावर का यूज किया गया वो कैसे किया गया? वो रॉन्गफुल पर्पस से किया गया, मतलब मिसयूज ऑफ पावर किया गया। पावर थी लेकिन उसका मिसयूज किया गया। ठीक है, पावर इलीगल भी नहीं थी लेकिन उसका मिसयूज किया गया। और मेल्फिसेंस में जो था, जो एक्ट ही इलीगल है, कंडक्ट ही इलीगल है ना। लेकिन मिसफिसेंस में एक्ट इलीगल नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन में कुछ कमी है। जैसे कि एग्जांपल इसका बेस्ट है कि एक डॉक्टर अपनी सर्जरी परफॉर्म करते हुए उसने नेग्लिजेंट एक्ट कर लिया, या फिर शराब पी के सर्जरी परफॉर्म कर दी। ठीक है, तो एक्ट तो इलीगल नहीं है, सर्जरी तो उसको करनी थी, लेकिन उसकी फैकल्टी सही नहीं थी उसको करते हुए। तो शराब पी के सर्जरी करना या फिर नेग्लिजेंट एक्ट कर देना सर्जरी में, तो इसको हम कहते हैं मिसफिसेंस। लास्ट इज नॉन फीसेंस। नॉन फीसेंस में क्या होता है कि आपकी एक्ट नहीं होता, जैसे कि तीनों में एक्ट है, यानी कि मैलिस इन लॉ में भी एक्ट है कि किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मेलफिसेंस में जो भी एक्ट है लेकिन अनलॉफुल एक्ट है। मिसफिसेंस में भी एक्ट है लेकिन उस एक्ट लीगल है, लेकिन उसको उसका एग्जीक्यूशन में कुछ कमी रह गई। लेकिन नॉन फीसेंस में एक्ट नहीं, ओमिशन है, किसी काम को आप कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी ड्यूटी है कि डूबते हुए लोगों को बचाना, लेकिन आप डूबते हुए इंसान को बचाने नहीं गए, तो आपने एक्ट ना करके ओमिशन किया। ठीक है, फेलियर टू परफॉर्म अ लीगली एक्वायर्ड एक्ट वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू डू सो। ठीक है, आपकी ड्यूटी थी उसको बचाना, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी ना करके ओमिशन किया। एक्ट करना आपकी ड्यूटी थी यहाँ पर, लेकिन आपने एक्ट ना करके ओमिशन किया, वो काम नहीं किया। ठीक है, तो फेलियर टू परफॉर्म योर ड्यूटी इज नॉन फीसेंस, जिसमें आपके पास एक ड्यूटी थी और आपने वो ड्यूटी नहीं की, जिसके कारण डैमेज हुआ है। और इसका एग्जांपल है, आप लाइफ गार्ड थे, आपने अपनी ड्यूटी नहीं की, या आप डॉक्टर थे, आपको सर्जरी परफॉर्म करनी थी, आपने अपनी ड्यूटी नहीं की, तो इसको हम कहते हैं नॉन फीसेंस। आई होप
ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। स्टिल नोट ऑल द कॉन्सेप्ट डाउन और अपने दिमाग में बसा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें से कम 7-8 सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बट स्टिल एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको सारी चीजें दे रखी है। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच यू शुड नोट डाउन एंड ईच एंड एवरीथिंग, दीज आर बेसिकली टाइप ऑफ कंपनीज। तो इसको गो थ्रू कर लो, नोट डाउन कर लो। माइनर एक्ट में कंपनी एक्ट का जो आपने कॉलम बनाया हुआ उसमें, इसके अलावा देयर नथिंग टू एक्सप्लेन, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, पढ़ के समझ में आ जाएगा। सो विद दिस वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मैचिंग मैच द फॉलोइंग। इजी है, कोई टफ नहीं है, बट ओनली एडवाइस विच आई वांट टू गिव इज जस्ट गो एंड रीड ऑल दीज सेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, डीप डाउन पढ़ना है। प्लस दैट इज द एडवाइस विच आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ लॉट ऑफ टाइम्स अर्लियर, दैट इज टू नोट डाउन द सेक्शन वेयर these all are mentioned under BNS, because for the upcoming exam BNS will become an important part. ठीक है, तो just note all these down. Okay, all of these are landmark judgments from the personal laws. गीता हरिहरन, सरला मुग्दल, डैनियल लतीवी, सीमा वर्सेस अश्विनी। अगर आपने लास्ट पीवाईक्यूज देखे हैं तो ईच एंड एवरी केस हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, तो आपके पास नोट्स है, तो उनको समझाने लगा कुछ नहीं है। सीमा वर्सेस अश्विनी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करता है। डैनियल लतीफी डील्स विद मेंटेनेंस राइट्स ऑफ मुस्लिम विमेन। सरला मुग्दल वैलिडिटी ऑफ सेकंड मैरिज बाइगेमी से रिलेटेड है। गीता हरिहरन गार्डियनशिप ऑफ माइनर का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, तो इसमें कुछ समझाने लायक कुछ नहीं है, चारों जजमेंट्स इजी हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम jurisprudence and the chronology is asked. इजी क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी पूछा जा चुका है और मैंने आपको पहले ही हिदायत दे रखी है दैट यू शुड व्हेन यू विल बी रीडिंग jurisprudence, तो आपको जो नोट्स बनाने हैं वो ईच एंड एवरी एनालिटिकल स्कूल हो या सब हो, उनमें क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ अ पर्टिकुलर जूरिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहाँ पैदा हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि उससे हमें एक चीज पता चलती है कि उसके सोचने का तरीका क्या रहा होगा, एंड व्हाई दैट पर्टिकुलर पर्सन इज फॉलोइंग अंडर पर्टिकुलर स्कूल। फॉर एग्जांपल अरिस्टोटल, प्लेटो और सुकरात को हम नेचुरल स्कूल के अलावा कहीं नहीं डाल सकते, बिकॉज नेचुरल स्कूल इज द एंशिएंट स्कूल, है ना, तो इससे इजीली अंदाजा लग सकता है। ठीक है, तो अब इसमें भी जेरेमी बेंथम ऑस्टिन, तो बेंथम तो पहले आया ही है ऑस्टिन से, है ना। बेंथम इज ऑस्टिन से पहले आया, तो ए हमेशा बी से पहले ही होगा, तो ए बी से पहले ऑलमोस्ट तीन ऑप्शंस में है ना। तो अब तीनों ऑप्शन में है। ठीक है, तो उसके बाद हमें फिर पता होना चाहिए एग्जैक्टली सर हेनरी मेन कब आए, हेंस केल्सन, हेंस केल्सन तीसरे नंबर बाद में ही आया होगा, है ना। तो हेंस केल्सन ए बी के बाद ही होगा, तो ए बी के बाद डी होना चाहिए, ए बी के बाद डी, ए बी के बाद डी, तीनों ऑप्शन में ए बी के बाद डी है ना। तो अभी भी कोई सा भी हो सकता है। अब इमैनुअल कांट जो था वो थोड़ा बीच का था, सर हेनरी मेन थोड़े पहले के थे। तो इसमें द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सॉरी बी, दैट इज इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट सबसे पहले थे। अब इमैनुअल कांट सबसे पहले थे, तो उसके बाद क्या होना है कि ए बी को तो होना ही बाद में, ए के बाद बी होगा, और डी सी, तो डी बाद में भी हो सकता है। तो इसका एक ही ऑप्शन बन रहा है, दैट इज टू, है ना। तो ये तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की इसको टैकल करने की, सॉल्व करने की, बट ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं, बट मोस्टली आपको इनके थोड़ा टाइम पीरियड याद रखना होगा, है ना, क्योंकि उससे एक तो ये इंटरेस्टिंग हो जाते हैं पढ़ने में, दूसरा याद रखना इनको इजी हो जाता है, प्लस इनकी ये कहाँ पैदा हुए और कहाँ ज्यादातर ये अपने जीवन में रहे, कहाँ बड़ी बड़ी किताबें लिखी, दैट जैसे कि ऑस्टिन इज फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, सर हेनरी मेन भी इंग्लैंड से थे, है ना। अमेरिकन हैंस कैल्सन ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रियन जूरिस्ट है। तो इस तरीके से एक अंदाजा, जेरेमी बेंथम इज आल्सो फ्रॉम इंग्लैंड, इमैनुअल कांट फ्रॉम जर्मनी थे। तो इनका टाइम पीरियड याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज समथिंग विच यू शुड, दिस इज अ क्वेश्चन विच यू शुड नोट डाउन। ठीक है, बहुत ही इजीली ये पांचों इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हमें नोट डाउन करने के लिए मिल गई हैं, प्लस डेफिनेशन क्लॉज आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि सेक्शन 82 है आईपीआर का, वो इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी लाइसेंसिंग से डील करता है, 92 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस तरीके के डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट है, तो ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर तो आपको मार्क करने के लिए लगभग 5 चीजें मिल गई हैं, बहुत इजी
क्वेश्चन है, ठीक है। सो जस्ट नोट इट डाउन एंड सरसरी निगाह इन पे मार लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो कृपया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच इज सेम एज अबव। इसको बस टफ बनाने की थोड़ी कोशिश की है ना। बट ऑल दीज 4 केसेस इफ यू हैव गॉन थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस तो आपको पहले से ही पता होंगे, ठीक है। बट ये तो थोड़ा अटपटा ही सवाल है टू आस्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल द केसेस। सो नोट डाउन कर लो, क्योंकि अब ये पूछे जा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, है ना। अब ये लेकिन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ना, तो आप कितने ही याद कर लोगे। बट स्टिल जो मिल रहे हैं, जो पीवाईक्यूज में हैं, आई होप कि आप उनके नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो हो ही जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी सारे के सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ थॉट, तो जजमेंट तो पता होना चाहिए, बारे में पता होना चाहिए। बट अगर कोई क्रोनोलॉजी पूछ ले तो उसमें अब क्रोनोलॉजी पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन कितना कर पाओगे वो एक अलग क्वेश्चन है। बट स्टिल नोट डाउन करते चलो, क्योंकि फिर इसी से रिपीट होने वाले हैं आगे चल के क्वेश्चन। तो अगर ये थोड़े से भी पॉइंटर्स आपको याद होंगे ना, तो इजी हो जाएगा। जैसे ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल बहुत पुराना केस हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, तो जस्ट मेक द नोट्स। ओके, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द सीक्वेंस सेम एज अबव, ठीक है। चार सात पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। रॉयल बैंक वाला तो इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्राइन है, शायद पिछली वीडियोस में या पिछली पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। एशबरी रेलवे कैरेज वाला केस भी एक लैंडमार्क केस है। स्ट्रीट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वाला केस भी लैंडमार्क है। और मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष इज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स, दैट इज फ्रॉम 1912, आई थिंक 1903, हाँ पुराना ही है। फ्रॉम सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट से याद कर लो। सीक्वेंस भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि अब ये पूछे बहुत जा रहे हैं, है ना। तो आपको एक इजीली सारे नहीं भी पता होंगे तो कहीं ना कहीं आइडिया रहेगा, तो कमिंग ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आईपीसी, ठीक है। अब आप ये चीज नोट करो, हालांकि ये तो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, पता होना चाहिए। बट आप एक चीज नोट करो, अमेंडमेंट्स पूछ रहे हैं तो बीएनएस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो जस्ट मार्क ऑल दीज सेक्शंस और बीएनएस में डाल दो इनको, अपनी जो लिस्ट बना रहे हो, ताकि आपको भी इजी पड़ जाए और आगे इनको सॉल्व करना भी इजी हो जाए, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक चीज और, कि बीएनएस में जो नई चीजें ऐड की गई हैं, जैसे सेडिशन को हटाया गया है, कुछ चीजों को ऐड किया गया है, अडल्ट्री वाला सेक्शन शायद हटाया गया है। तो जो ऐड किया गया है वो इम्पोर्टेंट, जो हटाया गया वो इम्पोर्टेंट, आने वाले कम से कम 10 साल के एग्जाम्स के लिए, है ना। तो मेक दैट लिस्ट। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन क्रोनोलॉजी, ये सारी जजमेंट तो आपने पढ़ ही ली होंगी ऑलमोस्ट, है ना। ये सारी लैंडमार्क जजमेंट है, जो नहीं लिखी तो वो लिख लो इसमें से जो एक्स्ट्रा दिख रही है, बाकी सेम एज अबव। ओके, सो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, जो मैं शुरू से पहली वीडियो से एडवाइस दे रहा हूँ, कि एनवायरमेंटल लॉ में कन्वेंशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्रोनोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ समिट 1, 2, 3, जनरेशनल राइट्स, रामसार कन्वेंशन, ये वो तो बहुत सी आपने नोट डाउन कर रखी होंगी। तो आपको पता होगा कि रायो डी जेनेरियो का ये अर्थ समिट जो है 1992 वाला 5 जून, जो कि एनवायरमेंटल डे भी है, ठीक है। तो ये सारी तो वैसी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इसमें और कुछ कहना नहीं है, नोट डाउन करते चलो और याद करते चलो, नोट्स बनाते चलो। याद करने का एक ही तरीका है, दैट इज रिवीजन। तो वीडियो देख देख के बार बार रिवीजन करते चलो, नथिंग मोर टू से। ओके, तो क्रोनोलॉजिकली तो इसको अरेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आई डोंट नो, मेरे लिए तो हो सकता है, ठीक है। बट ये सारे के सारे केसेस बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क केसेस हैं, तो इनको नोट डाउन कर लो। और अब आपको ईयर भी ऑलमोस्ट इन सब के पता होने चाहिए, लेकिन मोस्टली जो भी केसेस आप नोट डाउन कर रहे हो आगे पीछे से कहीं से भी, एनवायरमेंटल लॉ या फिर उसका, तो एक उसका ईयर का कॉलम बना लो, तो इजीली आपको हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना, कि सारे ऑप्शन पता हो जरूरी नहीं, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा अंदाजा लगा के सॉल्व कर सकते हो। अब लेकिन यार ये 1910, 1911, 1912, है ना, ऐसा केस दे देंगे। पलामास आइलैंड चलो 1928 का है, तो अब ये पता है, अगर आपको पलामा आइलैंड सबसे बाद का केस है, इनमें से एक अंदाजा है, तो यानी कि एक आप क्या कर सकते हो, आप इसमें थ्रू द आर टूल ऑफ एलिमिनेशन आप इसको थोड़ा एलिमिनेट करके कर सकते हो। बट वो भी तब होगा ना जब एक अंदाजा होगा, ठीक है। तो जस्ट नोट डाउन केसेस, केसेस मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट डाउन करते चलो। अनदर इंपॉर्टेंट केस फ्रॉम क्रोनोलॉजी, ये थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू द अर्लियर, है ना, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में आया, ये इजी है। 89th अमेंडमेंट 2000
थ्री में आया, ये हमें एटलीस्ट पता है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन माइनॉरिटीज, ये तो पता होती हैं, है ना। तो ये सिंपल है थोड़ा सा, बट स्टिल नोट डाउन। और इसी तरीके से और भी कमीशन अब आपको पढ़नी है। फिनेंस कमीशन कब आया, या कोई और पर्टिकुलर कमीशन है, कमीशन फॉर एस सी एस टीज कब आया, कमीशन फॉर ओबीसी कब आया, है ना। तो ये सारी कमीशन आपको पढ़ लेनी है एक बार। इंटर स्टेट कमीशन है तो वो क्या है, और भी किसी और से रिलेटेड कोई कमीशन है, नेशनल कमीशन, तो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कमीशन आया है तो वो कब आया है, या फिर नेशनल एनक्लेड कब आया है, कोई ट्रिब्यूनल बनी है बड़ी एनजीटी कब आया है, तो कौन सा अमेंडमेंट में आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इजीली आपको अब पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो विद दिस आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। और भैया ये तो ऐसे केसेस हैं जो आपको ऑन फिंगर टिप होने चाहिए विद ईयर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है। तो इसके बाद सबसे पता ही होना चाहिए, सबसे पहले आया है हमारा ये, क्या नाम है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सीएम के सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आया है, और लास्ट आपका कृष्णनंदा भारती है। ठीक है, बीच में आरसी कूपर वाला केस है, और बैंक नेशनलाइजेशन है, प्रिवी पर्सेस वाला केस है। ये सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं विच शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, है ना। तो ये कम से कम मिनर्वा मिल्स, है ना, टीएमएफआई, और इसी प्रकार के इंदिरा सोनी, है ना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केसेस आपके। तो ये सब लैंडमार्क जजमेंट्स, और लैंडमार्क सारे जजमेंट आपको पता होने चाहिए। सो विद दिस वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और बहुत तगड़ी लैंग्वेज है, तो हम पढ़ते हैं इसको। assertion is highly developed legal systems strive to create an autonomous apparatus of legal concept, legal techniques and legal norm. Highly developed legal system का मतलब क्या हो गया? Highly developed legal system which is there in our country, like we have a separate civil law, then criminal law, फिर constitutional law के लिए अलग हमारे पास बेंचेस हैं, है ना। उसके बाद सिविल का पूरा एक पूरा सिविल में कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है। उसके अलावा प्रॉपर्टी लॉज हैं, लैंड रिफॉर्म्स हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेजिस्लेचर्स आर देयर। तो हाईली डेवलप्ड लीगल सिस्टम इसको कहते हैं। क्रिएट एन ऑटोनोमस अपार्टस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। ऑटोनोमस अपार्टस से मतलब क्या हो गया, जो अपने आप में खुद मुख्तार है। जैसे कि वी हैव सिविल प्रोसीजर कोड, वी हैव क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वी हैव इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस लीगल अपार्टस्ट है ना। कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास अलग से एक्ट है ना। लीगल टेक्निक्स एंड लीगल नॉर्म्स क्या हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, कोडिफाइड लॉज हो गए। तो ये है असर्शन, और असर्शन का एक एक वर्ड एक एक कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस, है ना। बाकी यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो ये तो हो गए असर्शन। अब ये किस लिए है, द रीजन बिहाइंड दिस इज लॉ नीड्स टू बी एंडोर्ड विद लॉजिकल कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। लॉजिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना। इसीलिए वी हैव सिविल प्रोसीजर कोड, जिसके तहत मोस्टली सिविल लॉज के प्रोसीजर्स गवर्न होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, एक लॉजिकल कंसिस्टेंसी आ गई। वी हैव क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मोस्टली क्रिमिनल ट्रायल्स जो है वो गवर्न होते हैं हमारे सीआरपीसी से। अगर कोई स्पेशल लॉ है, उस पर कोई स्पेशल बात है तो वो है, बट मेजरली वी हैव जनरल लॉज। प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी किसको कहते हैं, प्रिडिक्टिबिलिटी कहते हैं कि वी हैव अ वेरी क्लियर कट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, whether it is civil law, procedure, whether it is criminal procedure. Last is stability, क्योंकि this provide a long term stability, है ना। क्योंकि इतना कट क्लियर है तो इससे हमारी एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। तो आई होप ये दोनों चीजों में बहुत ही प्यारी दोनों लाइनें हैं, दोनों सेंटेंसेस बहुत प्यारे हैं, दोनों स्टेटमेंट बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स उनमें एम्बॉयडीड है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज यूज हुई है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल द थिंग्स, एंड देयर इज आल्सो एक्सप्लेनेशन। सो जस्ट गो थ्रू इट, और जैसे ही आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। द आंसर इज दैट बोथ आर करेक्ट, एंड द रीजन इज करेक्ट explanation of the assertion. So with this I will be taking the next question. Another easy question from assertions and reasons, which is from intellectual property rights. So I will be reading the question. The assertion says that Trade Secrets Act 2020 is a legislation enacted in India to provide for confidential information and trade secrets, which is not correct,
है ना। ट्रेड सीक्रेट एक्ट इसलिए नहीं है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। ट्रेड सीक्रेट एक्ट इज देयर कि अगर किसी की ट्रेड से कोई रिलेटेड सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट ही रखा जाए। फॉर एग्जांपल कोका कोला की अगर कोई रेसिपी है तो इट कम्स अंडर ट्रेड सीक्रेट एक्ट, तो उसको बिकॉज इट इज अ सीक्रेट विच इज रिलेटेड टू देयर ट्रेड, है ना, उनके काम से रिलेटेड ट्रेड है। तो ए इज नॉट करेक्ट। तो बी पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज enacted a number of legislatures to create legal framework on intellectual property right, which is absolutely and 100% correct. We have Patent Act 1970, Copyright Act 1957, Trademarks Act 1999, Design Act 2000, Geographical Indication Act 1999, है ना। इसके अलावा इंडिजिनियस उससे भी रिलेटेड कुछ एक्ट्स हमारे पास और भी हैं, है ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन विच इज मेंशन। तो मल्टीपल लेजिस्लेशंस वी हैव। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड, सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so in this question, important terms which are related or the principles which are related to general jurisprudence of the trade is there. मैं कोशिश करता हूँ, वैसे तो बहुत सिंपल है। टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नेसेसिटी एंड बैलेंसिंग आर फाउंड एट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन गेट्स। अब गेट्स क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जीएटीटी गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जीएटीटी को खत्म करके ही हमने डब्ल्यूटीओ बनाई है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एसपीएस क्या है? सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स। एनटीबीटी क्या है? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये चारों के चारों तो ट्रीटी हैं, एग्रीमेंट्स हैं। तो इसमें तो क्या ही हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नेसेसिटी और बैलेंसिंग क्या है। अब ये सारे टेस्ट किससे रिलेटेड है? सारे टेस्ट रिलेटेड है ट्रेड से। तो इनका एक ओवरऑल मीनिंग ये है प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि शब्द से समझ में आ रहा है कि दैट द लॉज शुड बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, जितना कंपनी को फायदा हो उतना कंज्यूमर को फायदा हो। नेसेसिटी एंड बैलेंसिंग से एक चीज समझ में आ रही है कि जो इंटरेस्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात यहाँ पर हो रही है, दैट इज ऑल्सो द कंज्यूमर एंड ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब कोई किसी प्रकार का कोई कार्टेल ना बन पाए, है ना, ताकि किसी प्रकार की कोई मोनोपोली क्रिएट ना हो पाए, ताकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। तो ये तीनों टेस्ट उससे रिलेटेड हैं, दैट देयर शुड बी अ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट व्हाइल ड्राफ्टिंग द लॉज रिलेटिंग टू ट्रेड, है ना, लाइक कंपटीशन एक्ट। तो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर, और ये चारों के चारों उसी से बात करते हैं। अब दूसरी चीज, रीजन क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस टेस्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज क्लियर, जो कि सही है, बट इस तर्क का उस अदर्शन से कोई लेना देना है नहीं। द रीजन हैज नथिंग टू डू विद द एक्सप्लेनेशन, है ना। तो द ऑप्शन इज टू, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो विद दिस वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेज। अब मैंने पहले ही बोला है कि इंटरनेशनल लॉ में जितनी भी डॉक्ट्राइन्स हैं, पैक्टा संसरवाडा हो, जस्कूजन्स हो, स्टेयर डिसीजेज हो, अच्छा की स्टेयर डिसीजेज की डॉक्ट्राइन, तो इंटरनेशनल लॉ एक जनरल जुरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है, सोर्सेज ऑफ लॉ से रिलेटेड है, इंटरनेशनल लॉ से नहीं भी है, बट फिर भी। और बहुत सारी डॉक्ट्राइन्स है विच इज देयर इन दी एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन है, स्टिम्सन्स डॉक्ट्राइन है, तो 50 तरीके की डॉक्ट्राइन है विच यू शुड नो एंड प्रिपेयर अ लिस्ट। एंड आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, एंड बहुत जल्दी जब ये पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे, तो आई विल बी ड्रॉपिंग द वीडियोस रिलेटिंग टू दैट आल्सो, बट दैट इज इन द फ्यूचर। सो तब तक आपने अभी तक लगभग 7-8 डॉक्ट्राइन्स तो पढ़ ही ली है, जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। स्टेयर डिसीज की डॉक्ट्राइन इज अ डॉक्ट्राइन विच इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट्स, यानी कि जुडिशनल प्रोनाउंसमेंट, जो कि हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, दैट द जजमेंट ऑफ द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजेस हैज एसेंशियली डेवलप्ड as a result of progress made in law reporting, which is correct. Since the law in India is mostly based on the English law, the system of law reporting is fairly developed in India, which is also correct. So both the statements are correct, है ना। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की एआईआर होती है, ऑल इंडिया रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, वेरियस कोर्ट्स की। तो या बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। और प्रेसिडेंट की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच इज देयर अंडर आर्टिकल, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 129 is there, just check it. And we also have article 141 which is there. We have also have article 142, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। वी हैव आर्टिकल 143 एडवाइजरी jurisdiction की पावर है। तो these are also, so we have a lot of power which is there in our supreme court.
उनमें से एक प्रेसिडेंट सेट करने की पावर भी है, स्टेयर डिसीज की पावर भी है. सो विद दिस वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this is another interesting question from Muslim law. I will be reading. Assertion is Meher Dower is a sum of money which the Muslim husband agrees to pay to his wife as a mark of respect for her agreeing to marry him. Since Muslim marriage is a contract, it is necessary that dower must be specified at the time of marriage, and if it is not specified, it can be presumed. Which is true. The reason is not paid earlier, meher becomes due on the death of the husband or the dissolution of marriage by divorce, which is also true. And R is also the correct explanation of the assertion. But इसको समझते हैं इफ यू हैव बीन थ्रू द मुस्लिम लॉ महरी कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज, है ना? तो उसको हम महर कहते हैं. महर इज कंपलसरी इन मुस्लिम लॉ, देना 100% कंपलसरी है. उसके बिना मतलब वो आपको उसको माफ नहीं किया जा सकता किसी प्रकार से, उसको वो नहीं किया जा सकता. तो इट इज अ कंपलसरी थिंग, मैंडेटरी थिंग अंडर द मुस्लिम लॉ. वो ये इतना कंपलसरी है कि इफ नॉट पेड अर्लियर मेहर बिकम्स ड्यू ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड. तो डेथ ऑफ द हस्बैंड पे ड्यू हो जाता है या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे ही ड्यू हो जाता है अगर आपने शुरू में नहीं दिया. हालांकि तरीका तो यही है कि मतलब जो प्रोसीजर है दैट इट शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड इट इज अ कंपलसरी थिंग, इट कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ. सो दिस इज अ राइट विच कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. बट अब एक पढ़ के देखो ना, इसमें रीजन की जगह अदर्शन होना चाहिए था और अदर्शन की जगह रीजन होना चाहिए था. देन इट शुड मेक मोर सेंस. बट what is it is. So with this, I will be taking the next question. Okay, so this is an important question. Which part of the Constitution of India discusses the vision of the Constitution and its framers so as to which kind of society they aspire to establish in the country? And for me, the answer is only part 4, that is the directive principle of state policy, because it is like the idea which they have enshrined in the constitution, which cannot be affected at the time of making of the constitution. So this is something which they have given to the coming legislator so that they can with the time they can enforce all these directive principle of state policy. तो मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए 3, but NT ने आंसर दिया है 3, and the part 3 and part 4 they have also included the fundamental rights. Although the question clearly speak that which part of the Constitution of India discusses the vision of the Constitution and its framers so as to kind of society they aspired. है ना, यहाँ पर एस्पायरेशन की बात हो रही है, तो ये मोर सजेस्टिव है दैट दे आर टॉकिंग अबाउट डीबीएसपी. बट पार्ट 3 कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड. बट इतना क्लियर कट क्वेश्चन है तो क्लियर कट इसका आंसर पार्ट 4 अकॉर्डिंग टू मी. बट just go through this and discuss in your mind ki which is the best answer. So it's up to you. So we will be taking the next question. Very simple question. I don't think I need to explain it. Part 4 is the answer. The notion that every citizen must do his duty toward the nation as well as fellow citizens is incorporated in the Indian Constitution under Article and Part 4A, that is related to the fundamental duties. So nothing to explain. Taking the next question. Very simple question from constitutional law, that which of the following is part of the basic structure of the constitution? That is fundamental duties is not part, the active principle is not. No, the active principle is part. Political process and decision making, bit, but the best answer will be harmony and balance between part 3 and part 4 is the answer, which is given by the NTA. So yes, the answer is part 4, option 4. So we will be taking the next question. Okay, so very easy question. Which is distinguished as the conscience of the Constitution, which is fundamental rights and directive principle of state policy? Now, this is the clear-cut answer. So we will be taking the next question. Very simple question. The protection and enforcement of human rights under Article 32 is confined in India to fundamental rights, not on fundamental duties. Right to vote, और इकोनॉमिक एंड सोशल और कल्चरल राइट्स, नो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वो फॉलो करते हैं. एंड आंसर इट इज कंफाइंड टू ओनली फंडामेंटल राइट्स. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चंस, जिसमें मैं लगभग 600 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुका हूं. एंड इफ यू हैव गॉन ऑल थ्रू द वीडियोस देन आई एम 100% श्योर दैट अब आपको पैटर्न पता है, टैकल कैसे करना है वो पता है, आपके नोट्स तैयार हैं.
with only revising all the videos or your notes, you will be easily able to crack the UGC NET exam. With this hope, I will be bringing the paper of 2024 also, and then I will be bringing some another kind of series. So with this, we will be meeting in the next video.